Welcome student, this is your geography class 7, chapter 4. Structure of the atmosphere. Our atmosphere is divided into 5 layers starting from the earth's surface. These are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. Troposphere, this layer is the most important layer of the atmosphere. Its average height is 13 km. The air we breathe exists here. Almost all the weather phenomena like rainfall, fog and hailstorm occur in this layer. वायुमंडल की संरचना. हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है. ये है सौरमंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर. ट्रोपोस्फीयर. यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है. इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है. हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं. मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, फुहारा एवं ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है. Stratosphere. Above the troposphere lies the stratosphere. It extends up to the height of 50 km. This layer is almost free from clouds and associated weather and phenomena, making conditions most ideal for flying aeroplane. One important feature of stratosphere is that it contains a layer of ozone gas. We have just learned how it protects us from harmful effect of the sun rays. स्ट्रेटोस्फीयर. ट्रोपोस्फीयर के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है. यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है. यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है. इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं. समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है. यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है. मेसोस्फीयर. दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. इट लाइज above the stratosphere. It extends up to the height of 80 km. Meteorites burn up in this layer on entering from the space. मेसोस्फीयर. यह वायुमंडल की तीसरी परत है. यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है. यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है. अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाली उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाती है. Thermosphere. In thermosphere, temperature rises very rapidly with increasing height. Ionosphere is a part of this layer. It extends between 80 to 400 km. This layer helps in radio transmission. In fact, radio waves transmitted from the Earth are reflected back to the Earth by this layer. Thermosphere. थर्मोस्फीयर वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है. आयन मंडल इस परत की एक भाग है. यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है. रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है. वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पूर्ण पृथ्वी पर परिवर्तित कर दी जाती हैं. Exosphere. The uppermost layer of the atmosphere is known as exosphere. This layer has very thin air. Light gas like helium and hydrogen float into the space from air. Exosphere वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को वायुमंडल के नाम से जाना जाता है. यह वायु की पतली परत होती है. हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष से तैरती रहती हैं. वेदर एंड क्लाइमेट. इट इज़ गोइंग टू रेन टुडे. विल इट बी ब्राइट एंड सनी टुडे? हाउ मनी टाइम्स हैव वी हर्ड दिस फ्रॉम anxious cricket fans speculating the fate of a one-day match. If we imagine our body to be a radio and the mind is a speaker, weather is something that fiddles with its control knobs. Weather is
These are to our day-to-day condition of the atmosphere. Hot or humid weather may make one irritable. A pleasant breezy weather may make one cheerful and even plan for an outing. Weather can change dramatically from day to day. However, the average weather condition of a place for a longer period of a time represent the climate of a place. Now you understand why we have daily weather forecast. मौसम एवं जलवायु। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा। यदि आप कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे और दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकती है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हमें घूमने की योजना बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से प्रतिदिन बदलता रहता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत समय उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या आप समझ गए कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? This is the end of this video. We will continue this chapter in next video. If you have any doubt, please let us know. We will try to clear your doubts in another video. अगर आपको कोई संदेह है तो कृपया करके हमें बताइए। हम अगले वीडियो में आपके संदेह को दूर करने का प्रयास करेंगे।